Hello friends, Sat Sri Akal. Welcome to Race Academy Official. So I am your host and host for this weekly show, that is Current Affairs and General Awareness by Ajay Sidana, weekly GK class for Punjab Government Exams. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕਲੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਯੂਅਰ ਵਿਸ਼, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਟ ਆਲ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੇਜਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ 8 to 10 ਇਅਰਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵੀਕਲੀ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਆਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਵੀਕ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰੂ MCQ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀ 1-1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਕਚਰਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੀਏ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸੰਡੇ 31 ਜਨਵਰੀ, ਅੱਜ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਵਾਰਡ ਹੋਣ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰ ਆਫ ਦਿਸ ਸੰਡੇ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਸੋ ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਭ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PCS ਪ੍ਰੀ ਦਾ, ਦੈਨ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਏਗਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਐਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਏਗਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜੋ ਸਟੈਟਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੀਕ ਦੀਆਂ ਕੀ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਵੀਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਿਆ ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਆਰ ਕੰਸਰਨ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੀ ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ, ਸੋ ਐਂਡਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਰਟੀਡਮ ਡੇ ਵੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 30 ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਵਾਰਡਸ ਐਂਡ ਓਨਰਸ ਔਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਓਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡਸ ਐਂਡ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਇਨ ਨਿਊਜ਼, ਕਿਉਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੈਟਿਕ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੇਮਸ ਐਡ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ MCQ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 1.25 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਬਿਫੋਰ ਨੌਲੇਜ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਆਫਟਰ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਥੋੜੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਹੈ ਜੀ ਜਨਵਰੀ 23, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬੋਰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚਲੋ। ਸੋ ਨਾਓ ਜਨਵਰੀ 23, 23 ਜਨਵਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। ਸੋ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਬਾਰੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਨਵਰੀ 23, 2021 ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ 125th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ, 125th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 125th ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਰਹੇ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਕਿਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ PM ਮੋਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਬਾਈ 1 ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੀ ਉਹ ਰਹੀ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਈਅਰ ਲੌਂਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਈਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਮੇਟੀ ਫॉर ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਫॉर ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਅਰ ਲੌਂਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 125ਵੀਂ ਵਰਸ਼ਗਾਂਠ ਹੈ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 125ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਈਅਰ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ MP ਹੈਗੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 125ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀਗੀ, ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਊਲੀ ਬਿਲਟ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮੇਜਰ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰਿਜ। ਇਸ ਮੇਜਰ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਬ੍ਰਿਜ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੈ ਹਿੰਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਜਰ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5th ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਲਕਾ ਹਾਵੜਾ ਮੇਲ, ਕਾਲਕਾ ਟੂ ਹਾਵੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਟੂ ਐਸਕੇਪ ਫਰੋਮ ਬੰਗਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਕਾਲਕਾ ਟੂ ਹਾਵੜਾ ਮੇਲ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨੇਤਾ ਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਸੋ ਇਹ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, 23 ਜਨਵਰੀ,
सो सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए कि 23 जनवरी नेता जी सुभाष चंद्र की बर्थ एनिवर्सरी है। फिर अगर 23 जनवरी के नाल 2021 लग जाए तो यह 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है। सो 125वीं बर्थ एनिवर्सरी ते आ सारा कुछ जिहड़ा है तुसीं आ 5 पॉइंट याद रखने हैं ते नाल ये याद रखना है कि इस वारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हुण तो इस डे का नाम की करता जी, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किन्ना दिन मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ते नेता जी सुभाष चंद्र बोस की। तो ये चीज़ उस तो बाद गल इत्थे खत्म नहीं होंदी। नेता जी सुभाष चंद्र बोस जी का जी बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, ये 2 साल पहला जिहड़ा है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सीगा कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी ते हर साल किहड़ा अवार्ड दिता जाएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सो ये जिहड़ा अवार्ड है ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती ते आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिता जाएगा। किन्ना नूं दिता जाएगा, किन्ना नूं ऑनर किया जाएगा, ऑनरिंग सैल्फलैस सर्विस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। सो किन्ना नूं दिता जाएगा, दो कैटेगरी होणगियां, एक कैटेगरी होएगी पर्सन दी ते दूसरी कैटेगरी होएगी ऑर्गेनाइजेशन दी, ठीक है जी। सो पर्सन की कैटेगरी होएगी जिन्हां ने भी डिजास्टर मैनेजमेंट नूं सोल्व करन वास्ते, डिजास्टर मैनेजमेंट नूं प्रॉपरली मैनेज करन वास्ते इस तरह के जिहड़े काम है वो किते होण। जिवें फॉर एग्जांपल इस वारी दा जिहड़ा 2021 का पुरस्कार है पर्सन कैटेगरी दे विच मिलिया जी राजेंद्र कुमार भंडारी जी नूं। राजेंद्र कुमार भंडारी तो कौन हैगी है जी, इन्हां नूं क्यों मिलिया, देखो एक है CSIR। CSIR की है सेंट्रल साइंटिफिक जिहड़े है सेंट्रल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, ये सेंट्रल काउंसिल होंदी है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि जगह जगह ਤੇ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ डिफरेंट लैब्स हैगियां, सो या डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैगे है, कहते लैब हैगे है लेकिन वो काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूट होंगे है। सो CSIR की एक इंस्टीट्यूट है CBRI, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। NS ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ आपदा प्रबंधन पुरस्कार नाल नवाजिया गया। फिर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की गल करिए तो ऑर्गेनाइजेशन केड़ी रही जी, ऑर्गेनाइजेशन आई सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी। इनू शॉर्ट दे विच कहंदे आ जी सीड्स, SEEDS। मैं थोड़ा जिहा फास्ट लिख रहा, सो प्लीज़ पार्डन माई राइटिंग। मैं थोड़ा जिहा फास्ट जो लिख रहा ना भी, ताकि आप काफ़ी सारा लंबा लैक्चर करना है, काफ़ी जो चीज़ा करनी है ताकि जो टाइम की शॉर्टेज ना हो जाए। सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स जिहड़ा है इस ऑर्गेनाइजेशन नूं इह पुरस्कार नाल नवाजिया गया। सो 23 जनवरी का कंप्लीट डिटेल है वो थोड़े सामने है। नैक्सट गल करते हैं जी जनवरी 24। 24 जनवरी हर साल मनाया जाता है जी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। UN मनाता है इनू, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। सो इस बारी की थीम रही रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। सो यू ऑल नो वेरी वेल कि कोविड-19 की वजह नाल जिहड़ी एजुकेशन ते काफ़ी जिहड़ा है इफेक्ट पे है, इफेक्ट कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक नवी जिहड़ी है वो वे जिहड़ा है वो मिले है। सो हुण काफियां लई वो वधिया भी है, काफियां लई वो अच्छा नहीं है, लेकिन हुण जिहड़ी है नाउ इट्स टाइम टू रिकवर एंड रिवाइटलाइज। सो यही इस दी थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन दी। इस दे विच तुसीं इन्ना ही याद रखना है कि 24 जनवरी जिहड़ी है वो UN द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप दे विच मनाई जाती है ते ये जिहड़ी जो सामने दिती गई है ये इहदी थीम है। सो ये सी जनवरी 24। लेकिन जनवरी 24 ਨੂੰ ਹੋਰ भी दिन मनाया जाता है, वो मनाया जाता है नैशनल गर्ल चाइल्ड डे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नैशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये नैशनल गर्ल चाइल्ड डे आप जिहड़ा है ये मनाने आ। सो इनका रीजन की है मनाने का, टू क्रिएट दी अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड सैक्स रेशो। सो 2008 तो लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नैशनल गर्ल चाइल्ड डे मना रही है जनवरी 24। ईवन थोनों ये भी याद रखना पऊगा कि पंजाब दे विच तां स्कूलों दे विच हर मंथ की 24 तरीक नूं गर्ल चाइल्ड जिहड़ा है उन्होंने डेडिकेट किया जाता है, ठीक है। सो 24 जनवरी तुसीं याद रखना है। उस तो बाद इस दे नाल नाल तुसीं एक चीज़ होर याद रखनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना।
ठीक है जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये योजना जी 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਪਾਣੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਵਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਯੋਜਨਾ 2015 ਪਾਣੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 3 ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ठीक है जी, 3 मंत्रालय केड़े-केड़े है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन मिनिस्टर हैगी है जी, फटाफट लाइव चैट दे विच लिखो फटाफट, किहड़े मिनिस्टर है। श्रीमती समृति जुबीन ईरानी। कित्थों MP हैगी है, MP हैगी है अमेठी यूपी तो। फिर अगर आपां दूसरी उहदी गल करिए तां ओह हैगी है मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन मिनिस्टर हैगे है, मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। डॉक्टर हर्षवर्धन कित्थों MP हैगे है, चांदनी चौक न्यू दिल्ली तो। तीसरे है जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री, तीसरी मिनिस्ट्री केड़ी है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। सो एजुकेशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, श्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक जी। सो ये कित्थों MP हैगी है, हरिद्वार उत्तराखंड तो। ते रीसेंट दे विच ये न्यूज़ दे विच भी सीगे क्योंकि इन्हां नूं कैनेडा हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, सो रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। सो ये सारी चीज़ है जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बारे, जिहड़ी कि 2015 तो जिहड़ी है वो लॉन्च की गई पानीपत हरियाणा तो। सो ये सारी चीज़ नैशनल गर्ल चाइल्ड डे ते जरूरी है। उस तो बाद एक होर बड़ी वधिया चीज़ हुई, वो की हुई, ये अपनी फेमस पर्सनैलिटी भी आप कह सकते हैं। वैसे फेमस पर्सनैलिटी वीक की आप कोई होर लीती है, ये है जी सृष्टि गोस्वामी। सो हु इज शी, आई होप तुसीं इन्हां नूं जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं दस देना। कोई ये इस तरह के फेमस फिगर बने हैं, लेकिन अदरवाइज ये थोड़े तो मेरे वर्गे कॉमन जी है गाय है, कॉमन जी है स्टूडेंट है। सो ये जोड़े है हैगे, सब तो पहला तो कित्थों की रहने वाली है लड़की, उत्तराखंड। उत्तराखंड दे जिहड़ा हरिद्वार दी ये लड़की रहने वाली है। ठीक है, हरिद्वार दे दौलतपुर पिंड दी। ठीक है, रुड़की दे विच BSc एग्रीकल्चर दी स्टूडेंट है। नाउ वाई शी इज इन न्यूज़, शी इज इन न्यूज़ बिकॉज इन्हां नूं उत्तराखंड दे CM द्वारा इन्हां नूं 1 डे CM बनाया गया। 1 डे CM, जो भी आप 1 डे CM सुनते हैं तो आपको याद आता है ना अनिल कपूर जी की नायक मूवी, जिन्हें अमरीश पुरी जी ने उन्होंने 1 डे CM या चैलेंज किया तो उन्होंने एक्सैप्ट किया। सो ये चैलेंज नहीं है, ये जस्ट क्यों बनाया गया है, नैशनल गर्ल चाइल्ड डे ते एक जड़ा सिंबोलिक, जिवें आप एक सिंबोलिक कोई चीज़ कहने आ, सिंबोलिक एक जड़ा है ये देन वास्ते कि लड़कियां हर फील्ड दे विच अगे आ रही हैं। हुण तक उत्तराखंड की जिहड़ी कोई CM है ना, कोई भी हजे तक नो फीमेल CM, ਜਦੋਂ ਦਾ उत्तराखंड बनिया उदों तक की कोई फीमेल CM जी नहीं है। सो इस लड़की नूं सृष्टि गोस्वामी नूं 1 डे CM बना के एक सिंबोलिक ये दी गई है कि लड़कियां जिहड़ियां है उन्हां नूं जिहड़ा है अगे वधन लई बहुत सारे जिहड़े मौके है वो दिते जाने चाहिए है। सो मीनस कि दे कैन डू एनीथिंग इन एवरी फील्ड। ठीक है, सो सब कुछ वो कर सकती हैं। ये सिंबोलिक देन वास्ते इन्हां नूं जिहड़ा है 1 डे CM बनाया गया सृष्टि गोस्वामी। सो तुसीं नाम याद रखना जी, सृष्टि गोस्वामी जिहड़े कि उत्तराखंड दे एक दिन दे CM बने हैं। वैसे ना ये पहला भी न्यूज़ दे विच सी, अज तो 2 साल पहला ना 2018 दे विच एक उत्तराखंड दी ना UK मतलब उत्तराखंड दी एक बाल विधान सभा बनी सी, बाल विधान सभा। उदों भी इन्हों उस बाल विधान सभा का CM बनाया गया सी, लेकिन हुण जिहड़ा है हुण इन्होंने ओरिजिनली ओरिजिनल जिहड़ी CM की कुर्सी है जिस ते बैठे है उत्थे बैठे। सो एक दिन का CM बनाया गया। कित्थों इन्होंने एक्ट किया, ये वाकई जिहड़े है गायरेसान, गायरेसान की है, गायरेसान उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है। ठीक है, उत्तराखंड की सॉरी समर कैपिटल, उत्तराखंड की समर कैपिटल है। अदरवाइज जिहड़ी कैपिटल है वो केड़ी है, उत्तराखंड की देहरादून। सो समर कैपिटल केड़ी है, गायरेसान। ठीक है, सो ये चीज़ है इत्थों इन्होंने किया ते इन्होंने डिफरेंट जिहड़ियां वेलफेयर स्कीम्स है उन्हां दा इन्होंने वेलफेयर स्कीम्स दा जिहड़ा फॉलोअप है वो लिता। सो नाम है जी सृष्टि गोस्वामी। नैक्सट आया जी 24 जनवरी नूं ही मनाते हैं फाउंडेशन डे ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे भी 24 जनवरी नूं ही मनाया जाता है। तो इस बारी उनकी थीम सीगी
respect for self-reliant UP, women, young farmers, development for all. Means respect for self-reliant, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, महिलावां ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਯੰਗਸਟਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਥੀਮ ਸੀਗੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਆਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਲੌਂਚਡ ਉਦਯਮ ਸਾਰਥੀ ਐਪ for youth to explore self employment। ਸੋ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਦਯਮ ਸਾਰਥੀ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ to enable the youth of the state to get every information related to self employment and job industry। ਸੋ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਦਯਮ ਸਾਰਥੀ ਐਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਥ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੀ ਲੈ ਸਕਣ, ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਡ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੀਮ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ODOP ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੀਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ GI ਟੈਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, GI ਟੈਗ ਕਿ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ GI ਟੈਗ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੰਗਾਲੀ ਰਸਗੁੱਲਾ, ਉੜੀਸਾ ਰਸਗੁੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿੰਡੀਗੁ ਲੋਕਸ ਆਫ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਟੈਰੀਕੋਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਸਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਦਯਮ ਸਾਰਥੀ ਐਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਡੇ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 25 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ। Now why 25th January? Because January 25th 1950 ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਉਸ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਮੇਕਿੰਗ ਆਵਰ ਵੋਟਰਸ empowered, vigilant, safe and informed। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸੇਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਇਨਫੋਰਮਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮਡ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ, ਹਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ। ਚਲੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਨਵਰੀ 25 ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 1 2 ਤੇ 3। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੇ, ਹੈਲੋ ਵੋਟਰਸ। ਹੈਲੋ ਵੋਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਨਾ ਬਾਈ MBBS ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਲਗੇ ਰਹੋ ਮੁੰਨਾ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ ਮੁੰਬਈ, ਹਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਵੋਟਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਲੋ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਦਾ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਇੰਫਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਫਾਲ ਮਨੀਪੁਰ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਬੈਸਟ ਸਟੇਟ ਫॉर ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਇਹ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜੀ ਮੇਘਾਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਹੈਲੋ ਵੋਟਰਸ, ਇੰਫਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ। ਨੈਕਸਟ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਿਮੈਂਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
फिर अपना मेन आंदा है जी जनवरी 26 जिंदे बारे हुण आपां अगले 10-12 मिनट पूरी तरह लगावांगे कि रिपब्लिक डे दे उपर की होया। सो 26 जनवरी मनाया जाता है जी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, भारतीय गणतंत्र दिवस। भारत का संविधान वैसे तो जिहड़ा है वो 26 नवंबर नूं बन चुकिया सीगा, 26 नवंबर 1949 जिन्हों कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने जिहड़ा एप्लीकेबल किया गया 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 नूं उन्होंने एप्लीकेबल किया गया। दैट्स वाई गणतंत्र दिवस आपां मनाने 26 जनवरी नूं। सो इहदे बारे की सब कुछ इंपोर्टेंट किन्ने जिहड़े पॉइंट्स है, तकरीबन 8 तो लैके 10 पॉइंट है जिहड़े तुसीं पूरी तरह याद रखने हैं इस साल दे रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया दे। सो ये मैं करवाऊंगा दोस्तों अपने जिहड़े मेरे खुद दे नोट्स तो, ठीक है। सो इदां दे नोट्स है जिहड़े प्रोवाइड भी किए जाते हैं, चलो वो बाद की गल है, लेकिन ये जिहड़े है ताकि अपना टाइम बच जाए इत्थे लिखण वाला, ये मैं डायरैक्टली आपदे नोट्स चों लिता है। सो इहनूं तुसीं ध्यान नाल समझ लेना। जनवरी 26 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, इंडिया ने सैलीब्रेट किया आपका 72nd 72वां रिपब्लिक डे सैलीब्रेट किया 2021 नूं। हुण रिपब्लिक डे की परेड की हाईलाइट्स रहे। सब तो पहला इस बारी कोई चीफ गेस्ट नहीं आया, नो चीफ गेस्ट फॉर दिस टाइम ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ये पहली बारी होया 1966 तो बाद, वैसे 1952-53 भी होया सीगा, लेकिन 1966 तो बाद ये पहली बारी होया। 1966 दे विच जदों लाल बहादुर शास्त्री जी दी 11 जनवरी 1966 दे विच ताशकंद दे विच डेथ हो गई सीगी। दैट्स वाई जिहड़ा है उदों आपां नहीं मनाया सी। एक उदों ही 1966 दे विच ही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जिहड़े कि बड़े ही रिनोन्ड साइंटिस्ट सीगे इंडिया दे, उन्हां दोनां दी मौत दी वजह नाल जिहड़ा है 1966 दे विच कोई चीफ गेस्ट नहीं सीगा। उस तो बाद लगातार कोई ना कोई फॉरेन चीफ गेस्ट हमेशा आंदा रहा है, लेकिन इस बारी ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक देयर वाज नो एनी चीफ गेस्ट इन दी रिपब्लिक डे परेड। तो रिपब्लिक डे परेड की जिहड़ी सलामी होंदी है, सेना की जिहड़ी सलामी है, वो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया लेंदे है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम उस तो बाद एक चीज होर नवीं हुई, अ मार्चिंग कंटिजेंट एंड ए बैंड ऑफ बांग्लादेश ट्राई सर्विसेज। किन्ने सोल्जर 122 सोल्जर्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्यों? टू कोमोमोरेट 50 ईयर्स ऑफ इट्स हिस्टोरिक लिबरेशन। सो तुहानूं पता है बांग्लादेश कदों आजाद होया सीगा? ईस्ट पाकिस्तान हुंदा सी 1971 तक। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਗਨ ਸੈਲਿਊਟਸ ਵਰ ਗਿਵਨ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ। ਸੋ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਲਿਊਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? 21 ਗਨ ਸੈਲਿਊਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਮਾਰਚਿੰਗ ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ हैज बीन रिड्यूस्ड टू 96 फ्रॉम 144। 144 पहला हुंदे सीगे, लेकिन इस बारी जिहड़े है 96 ही जिहड़े कंटिजेंट है वो रखे गए। फिर अगर आप टैबल्यूज की गल करिए, टैबल्यूज इस बारी किन्ने रहे? टोटल 32। टैबल्यू की होंदे है? टैबल्यू होंदे है झांकियां, डिफरेंट स्टेट्स दियां, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज दियां, डिफरेंट आर्म्ड फोर्सिस दियां। सो अगर आप 32 की गल करिए तो इन्हां चों 17 सीगियां स्टेट ते यूटी दियां, ठीक है। 9 सीगियां मिनिस्ट्रीज दियां, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। उस तो बाद 6 सीगियां आर्म्ड फोर्सिस दियां, आर्म्ड फोर्सिस, ठीक है जी, आर्म्ड फोर्सिस। तो 17 ते 9 26 ते 6 32। सो 32 जिहड़ियां टोटल टैबल्यू सीगियां। अगर आप मेन टैबल्यू की गल करिए, मेन की रहा लद्दाख। लद्दाख जिहड़ा है फर्स्ट टैबल्यू ऑफ द यूटी आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। कदों फॉर्मेशन हुई सी? 31 अक्तूबर 2019। 31 अक्तूबर 2019 ਨੂੰ फॉर्मेशन तो बाद पहली बारी जिहड़ा टैबल्यू है वो लद्दाख का जिहड़ा है वो आया इहदे विच। फिर अगर आप गल करिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटैक, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटैक की जिहड़ी थीम सी वो सी आत्मनिर्भर भारत। ते इन्हां ने की दिखाया? मिशन कोरोना सुरक्षा, मीनस जिहड़ियां कोरोना की जिहड़ी वैक्सीनेशन हो रही है वो वैक्सीनेशन की झलक कित्थे दिखी? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटैक की जिहड़ी टैबल्यू दे विच। फिर पंजाब, आप पंजाब के एग्जाम देने हैं तो पंजाब के सब तो इंपोर्टेंट है पंजाब की जिहड़ी टैबल्यू सी उहदे विच झलक की उहदी जिहड़ी मेन डेडिकेट की गई 9th सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी, जिन्हां दा
400ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਬਗੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਢੇਰਾ ਸਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਟੈਪਨੀ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਕਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਵਿਕਟਰੀ ਲਿੱਤੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੀ ਟੈਬਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਈਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਵਨਾ ਕਾਂਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦੀ ਫਸਟ ਵੀਮਨ ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟ ਟੂ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਟੈਬਲਿਊ। ਸੋ ਭਾਵਨਾ ਕਾਂਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਅਵਨੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਭਾਵਨਾ ਕੈਂਥ ਤੇ ਮੋਹਾਨਾ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਭਾਵਨਾ ਕੈਂਥ ਜੀ ਫਸਟ ਵੀਮਨ ਬਣੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ फाइटर एज ए फाइटर पायलट टेक पार्ट करन दा मौका मिलिया है रिपब्लिक डे दे विच। फिर रफाल जिहड़े फाइटर जैट्स है वो पहली बारी जिहड़े है वो शोकेस किए गए। रफाल बारे 3 चीज़ां इंपोर्टेंट है, तुसीं तीनों चीज़ां याद रख लो। सब तो पहला अगर आपां रफाल की गल करिए तो रफाल फाइटर जैट्स का जिहड़ा एक्सरसाइज हुई है, एक एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट, एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट। ठीक है जी, ये इंडिया ने किंदे नाल कीती है, ये मैं बाद च दसूंगा क्योंकि इहदे ते क्वेश्चन भी आएगा, या चलो हुणे सुनना तो हुणे सुन लो। वो कीती है फ्रांस दे नाल, ते फ्रांस भी आपदी तरफों रफाल लैके आया, ते इंडिया मतलब मीन जिहड़े रफाल जैट जदों दे आए है पहली जिहड़ी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट दे विच पार्ट लै रही है। दूसरी चीज़ आही है, दूसरी चीज़ की वो रिपब्लिक डे दे विच पहली बारी शोकेस किए गए है। तीसरी चीज़ की है कि हुण तक रफाल किन्ने आ चुके हैं, हुण तक की अगर आप गल करिए तो पहले जिहड़ा शिफ्ट सीगी उहदे विच 5 रफाल आए जिन्हां नूं अंबाला दी 17 स्क्वाड्रन जिहड़ी है स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरो दे विच रखिया गया। उस तो बाद अगर आप गल करिए उस तो बाद नवंबर 2020 दे विच 3 होर आए रफाल जिन्हां नूं वैस्ट बंगाल दे विच रखिया गया या जिहड़ा है प्लेस किया गया। ते हुण बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है कि 3 जिहड़े पायलट जिहड़े रफाल है वो होर आ चुकी है, इन्हां दी हले पोस्टिंग जिहड़ी है वो डिसाइड नहीं हुई। ते अगर आप रफाल की गल करिए तो रफाल जिहड़े है टोटल इंडिया ने किन्ने रफाल लैने हैं 36, जिन्हां चों 30 हैगे आ फाइटर ते 6 हैगे आ ट्रेनर। 30 फाइटर 6 ट्रेनर। किन्नी कॉस्ट है इन्हां दी 59,000 करोड़। ठीक है जी, ये रफाल बारे गल है। फिर गल है जी होर की शो किया गया, दी मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, जिहड़ी कि 400 किलोमीटर वाला जिहड़ा वेरिएंट है उहदा मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर। ते ब्रह्मोस जिहड़ा है वो किंदा किंदा है, ब्रह्मपुत्रा ते मोसिकावा। ब्रह्मपुत्रा एंड मोसिकावा, ब्रह्मपुत्रा इंडिया की रिवर है, मोसिकावा रशिया की रिवर है। इंडिया ते रशिया के जॉइंट कोलैबोरेशन है ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस का हौली हौली डिफरेंट नवे वर्जन आ रहे हैं। सो जो मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर वर्जन है ब्रह्मोस का वो भी इत्थे शो किया गया। सो ये सारा कुछ सीगा जी मेन न्यूज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਝਲਕੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਿੰਪਸ ਆਫ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪੈਕਟਸ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਫਾਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋविंद ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਿਨਾਕਾ ਮਿਸਾਈਲਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, लद्दाख ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਟੈਬਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਂਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਬਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਬਗੰਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਐਸ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਬਲਿਊ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੈਬਲਿਊ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਤੱਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 2023 ਤੱਕ। ਸੋ ਰਾਮ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੀਪੋਤਸਵ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਂਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਫਸਟ ਰੈਂਕ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਝਾਂਕੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ। ਸੋ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਂਕੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰੈਂਕ। ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਸੀਗੀ
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰੈਂਕ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੰਦੀ ਝਾਂਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ केदारनाथ, ठीक है जी, केदारनाथ टेंपल। सो नाल ही इन्होंने आपकी बायोडाइवर्सिटी दिखाई हुई है, ये है जी थर्ड रैंक मिलिया यूके दैट इज उत्तराखंड नूं। सो तीनों जिहड़े रैंक है, फर्स्ट राम टेंपल, सैकेंड जिहड़ा है वो त्रिपुरा ते थर्ड जिहड़ा है केदारनाथ, ये तीनों बारे जिहड़ा तुसीं ध्यान रखना है, ये है रैंकिंग। फिर चलते हैं जी अवार्ड्स एंड ऑनर। सो रिपब्लिक डे जदों भी हुंदा है, सो अवार्ड एंड ऑनर अनाउंस किए जाते हैं। वो किहड़े अवार्ड होंदे है, वो अवार्ड होंदे है दोस्तों इंडिया के हाईएस्ट अवार्ड। इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड की है, इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न, जिहड़ा कि 1954 दे विच अनाउंस किया गया सीगा। 1954 दे विच किया गया कि भारत रत्न दिता जाया करूगा ते दूसरा दिता जाऊगा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है जी। ये दोनों 1954 च डिसाइड होए। पद्म विभूषण दे विच कहा गया कि 3 होया करनगे, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा, ठीक है, ये किया गया। लेकिन 1955 दे विच 1955 दे विच एक प्रेजिडेंशियल ऑर्डर आया जिंदे ये अवार्ड चेंज कर दिते गए। पहला अवार्ड भारत रत्न, फिर किया गया पद्म विभूषण, फिर किया गया पद्म भूषण ते फिर पद्म श्री, ठीक है। ये मैं साइड से तां लिखिया भी नीचे तुहानूं पता कई बार पता नहीं लगता। सो ये जिहड़े है 1955 दे विच कर दिते गए। सो गल करदे आ मेन जदों भी ये हर साल अनाउंस होंदे है, सो उन्हां परसनस दे नाम बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। मेनली ये हो जाता है कि एक तो जिहड़े फॉरनर्स नूं मिलदे है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होंदे है, दूसरे जिहड़े परसनस नूं मिले वो किहड़े फील्ड नाल रिलेट करते हैं, ये सब तो ज़्यादा जिहड़ी चीज़ है ये इंपोर्टेंट हो जाती है। हुण जिहड़े है पद्म श्री की अगर आपां गल करिए, मेन तुहानूं याद करने होंदे आ तुसीं या एक बारी पढ़ने होंदे है पद्म विभूषण ते पद्म भूषण, क्योंकि पद्म श्री है वो काफ़ी सारी जिहड़ी है उहदे विच हुंदे है, काफ़ी मात्रा दे काफ़ी जिवें कह रही है कि जिहड़े है नंबर दे विच हुंदे है, उन्ने याद रखने या उन्ने करने ईजी नहीं हुंदे। सो तुसीं मेन तुहानूं पता होना चाहिए पद्म विभूषण ते पद्म भूषण। बाकी अगर तुसीं पद्म श्री भी करने होण तां तुसीं PIB गवर्नमेंट दी है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उत्थे जाके लिस्ट जिहड़ी है वो डाउनलोड कर सकते हो। सो अगर आप दोस्तों गल करिए पद्म विभूषण की, बट उस तो पहला अवार्ड से जाने तो पहला तुहानूं एक ही दसदा कि टोटल किन्ने दिते गए 119 119 अवार्ड जिहड़े है वो दिते गए इस फील्ड दे विच। 119 की अगर आप गल करिए तो 7 सीगे पद्म विभूषण प्लस 10 हैगे है पद्म भूषण ते 102 हैगे है पद्म श्री। समझ गए जी। 119 चों 102 हैगी है पद्म श्री, 10 हैगी है पद्म भूषण ते होर जिहड़े है 7 हैगे है पद्म विभूषण। ते उस तो बाद भी इहदी एक होर मैं तुहानूं कैटेगरी दसां जो एग्जाम पूछी जा सकती है। इन्हां 119 चों वीमेन किन्नियां हैगियां, किन्नियां वीमेन नूं मिलिया 29 नूं, 29th, ठीक है जी। इस वारी एक ट्रांसजेंडर नूं भी जिहड़ा है अवार्ड मिलिया, वो ट्रांसजेंडर हैगे है 1 ते एक होंदे एक वर्ड होंदा है पोस्टूमस, ठीक है जी। पोस्टूमस मीनस मरणोपरांत। किन्ने लोगों को मरणोपरांत ये अवार्ड मिले, वो हैगे है जी 16, मीनस ये 119 दे विच इंक्लूडिड है। टोटल किन्ने अवार्ड मिले 119। सो 7 पद्म विभूषण मिले। वो 7 पद्म विभूषण की हैगे है जी। सब तो पहला फॉरन का ध्यान रखो, श्री शिंजो एब, अब ये नहीं कहना, श्री शिंजो एब पब्लिक अफेयर्स दे विच इन्हां नूं मिलिया जी। कित्थों दे PM रिटायर होए है, मतलब रिजाइन किया सी इन्हां ने जापान। दूसरे अगर आप गल करिए फॉरनर दी तो वो है श्री नरेंद्र सिंह कापानी, ठीक है, नाम वैसे इंडियन ही है, श्री नरेंद्र सिंह कापानी। इन्हां नूं मरणोपरांत मिलिया जी साइंस एंड टैक्नोलॉजी फील्ड दे विच ते एक कित्थों बिलोंग करदी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तुसीं ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुनिया होएगा, ऑप्टिकल फाइबर, इन्हां नूं उहदे जनक मन्निया जांदा है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है जी। सो नरेंद्र सिंह कापानी। फिर अगर आप गल करिए बहुत ही मशहूर सिंगर बॉलीवुड के SP बाला सुब्रमण्यन, सो इन्हां नूं भी मरणोपरांत दिता गया 8 कैटेगरी दे विच। ये तमिलनाडु तो बिलोंग करते सी। डॉक्टर BM हेगड़े ये मेडिसिन तो बिलोंग करते सी करनाटका तो। फिर अगर आप गल करिए मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये स्पिरिचुअलिज्म नाल दिल्ली तो बिलोंग करते हैं। श्री BB लाल आर्कियोलॉजी नाल दिल्ली तो बिलोंग करती है। सुदर्शन साहू आर्ट
ਤੇ ਉੜੀਸਾ। ਇਹ 7 ਸੀਗੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਜੀ ਨਿਪੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਨਿਪੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਨਿਪੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਫੋਰਮਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਪੀਐਮ। तो उस तो बाद रिटायरमेंट तो बाद इन्हां नूं हुणे आपां राम टैंपल देखिया ना, राम टैंपल ट्रस्ट जिहड़ा बनिया सी राम जन्म भूमि ट्रस्ट, उहदे विच मंदिर दे डिजाइन दे हैड कौन सीगे? श्री निपेंद्र मिश्रा। कौन सीगे नहीं, कौन हैगे है। सो ये सिविल सर्विसिज दे विच उत्तर प्रदेश तो बिलोंग करते हैं, इन्हां नूं पद्म भूषण मिलिया। फिर राम विलास पासवान जिहड़े कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर सीगे, उन्हां दा देहांत होया। जिहड़े है उन्हां पब्लिक अफेयर्स दे विच बिहार तो बिलोंग करते सी, इन्हां नूं मिलिया। फिर केशव भाई पटेल, लास्ट लैक्चर दे विच भी तुहानूं याद होगा आपां कीता सीगा सोमनाथ ट्रस्ट। सोमनाथ ट्रस्ट के प्रेजिडेंट बनाए गए है प्रधानमंत्री मोदी। वो क्यों खाली सीगा सोमनाथ ट्रस्ट के प्रेजिडेंट का? क्योंकि 2004 तो ही श्री केशव भाई पटेल जिहड़े कि फॉर्मर सीएम सीगे गुजरात के, वो उस पोस्ट ते सीगे। उन्हां दी मौत तो उन्हां दी मृत्यु तो बाद ये पोस्ट खाली सी। सो ये कौन है जी? केशव भाई पटेल। इन्हां नूं की मिलिया? पद्म भूषण। फिर सुमित्रा महाजन, सुमित्रा ताई है ना, जो इन्हां नूं जिहड़े कि अपने लोक सभा के स्पीकर रहे है मिस सुमित्रा महाजन। हुण कौन हैगी है लोक सभा के स्पीकर? श्री ओम बिरला जी है ना। सो सुमित्रा महाजन जिहड़े कि लोक सभा स्पीकर रहे, उन्हां नूं भी पद्म भूषण अवॉर्ड मिलिया। फिर श्री तरुण गोगोई जी, इन्हां नूं भी मरणोपरांत, ये असम तो बिलोंग करते हैं, पब्लिक अफेयर्स दे विच इन्हां नूं भी पद्म भूषण मिलिया। बाकी तुसीं देख सकते हो मिस कृष्णन नायर। फिर अगर आपां बाकी की गल कर ही लीती, कलबे सादिक ते रजनीकांत देवीदास श्रॉफ ते श्री तरलोचन सिंह हरियाणा तो पब्लिक अफेयर्स दे विच, ये सारे मिले जी पद्म भूषण अवॉर्ड। सो ये तुसीं याद रखना है जी, पद्म विभूषण ते पद्म भूषण। फिर ये नंबरिंग याद रखनी है, टोटल 119, 102 पद्म श्री, 10 पद्म भूषण ते 7 पद्म विभूषण। फिर 29 फीमेल, 1 ट्रांसजेंडर ते 16 नूं मरणोपरांत ये अवॉर्ड मिलिया। फिर गल करते हैं जी पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। सो तुहानूं पता है एक दिन पहला ईवनिंग दे विच ये भी अनाउंस किए जाते हैं, दिते जाते हैं पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। सो ये जिहड़े है ये काफ़ी, ये तुहानूं पता ही है कि बच्चों की वीरता लई उन्होंने दिते जाते हैं। सो नाम इन्ने इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट ये है कि एक तो ये अवॉर्ड दिते जाते हैं, दूसरा किन्नियां नूं दिते गए। ये दिते गए जी 32 चिल्ड्रनस नूं ये अवॉर्ड दिते। ये पर्सनैलिटी कौन हैगी है जी, जिन्हां दा नाम सामने आ है, ये है श्रीमान किरण रिजिजू जी। ये अपने हैगे है पब्लिक जिहड़े अपने हैगे यूथ एंड स्पोर्ट्स दे मिनिस्टर, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स दे मिनिस्टर। सो अरुणाचल वेस्ट, अरुणाचल इन्हां दी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो अगर आप करंट की गल करिए तो इन्हां नूं एडिशनल चार्ज भी दिता होया मिनिस्टर ऑफ आयुष का। क्यों दिता होया है? क्योंकि जिहड़े मिनिस्टर ऑफ आयुष हैगे है श्रीपद येसो नायक, जिहड़े कि MP हैगे है नॉर्थ गोवा तो, उन्हां दा कार एक्सीडेंट के कारण उन्हां दी जिहड़ी सर्जरी है वो चल रही है हॉस्पिटल दे विच, या सर्जरी हुई है। सो दैट्स वाई जिहड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का चार्ज भी इन्हां नूं मिलिया होया है। नैक्सट गल करते हैं जी 26 जनवरी ही हुंदा है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। इंटरनेशनल कस्टम डे हुंदा है 26 जनवरी। सो ये क्यों हुंदा है? क्योंकि जिहड़ी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन वो बनी सीगी 26 जनवरी, ठीक है जी 1952, ठीक है। सो ये उदों बनी सी, तां करके जिहड़ा है इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है 26 जनवरी नूं। एंड दी इस वारी दी थीम सी कस्टम बोलस्टरिंग रिकवरी रिन्यूएबल एंड रिजिलियंस। सो कस्टम की हुंदा है, जिहड़ियां जदों कोई प्रोडक्ट एक देश तो दूजे देश जाता है या है तो जिहड़ी कस्टम ड्यूटीज वगैरह लगदियां, सो उन्हां ते बेस हुंदा है इंटरनेशनल कस्टम्स डे जनवरी 26। फिर जनवरी 27 मनाया जाता है जी इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंबरेंस डे। नाउ व्हाट इज दिस होलोकॉस्ट? होलोकॉस्ट इज द जेनोसाइड ऑफ ज्यूज, जिहड़ा कि यूरोप दे विच स्पैशली जर्मनी, पोलैंड इत्थे होया सी 1941 तो 45 दे विच, ਜਦੋਂ कि काफ़ी सारे जिहड़े है ज्यूज नूं जिहड़ा है वो टॉर्चर किया गया सी। सो दैट्स वाई जिहड़ा है ये जनवरी 27 ये डे डेडिकेट किया है UN ने, जिहड़ा कि कोमोमोरेट तो नहीं कहांगे, जिहड़ा कि जिहड़ा ऑब्जर्व करता है इस दिन नूं, ताकि जिहड़ा इस तरह की चीज़ मुड़ के दुनिया दे विच ना होवे। नैक्सट है जी 28 जनवरी मनाई गई जी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। सो लाला लाजपत राय जी बारे तुसीं सारे बड़े चंगी तरीके नाल जानते होंगे। लाल बाल पाल दे करके फेमस रहे, एक्सट्रीमिस्ट रहे इंडियन नैशनल कांग्रेस तो, ठीक है जी। सो इन्हां दा जन्म जिहड़ा होया सी ना वो 28 जनवरी 1865
ਨੂੰ ਜਗਰਾਓਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੈ ਉਹ 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਮੇਨ ਲਾਲ ਬਾਲ ਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸੋ 155ਵੀਂ 155th ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਆਫ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ 28 ਜਨਵਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 22-21 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ filmdivision.org ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਲਿਖੋ ਫਟਾਫਟ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਗੇਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੋਕਰ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਪੋਰਟੁਗਲ ਦੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਂ ਪੋਰਟੁਗਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਗੋਲ ਸਕੋਰਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਐਸਟ ਗੋਲ ਸਕੋਰਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਤੇ? 760। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸਫ ਬਾਈਕਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ ਸੀ? 759, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੇਲੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਪੇਲੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੇਲੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? CR7। ਦੇਖੋ 7 ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, CR7 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, CR7 ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ 7 ਨੰਬਰ। ਸੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਹੈ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਖੇਲਦੇ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਗੋਲ ਸਕੋਰਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਮੇਨ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਈਅਰ 2021 ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਬਜਟ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਣਗੇ ਉਹ ਬਜਟ, ਹੈ ਨਾ? WhatsApp ਤਾਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਫੈਬਰੂਅਰੀ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੀਨਸ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਹਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਐਪ ਹੋਏਗੀ, ਫਸਟ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ। ਸੋ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਬਾਰੇ? ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਖੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਅਜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਬਲੋਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਬਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਫਿਸ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਦੈਨ ਉਹ 1 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਆਊਟ
ना होवे। ठीक है जी। सो ये होंदी है हलवा सैरेमनी जो इस वारी जिहड़ा है वो लास्ट वीक दे विच होई। तो उस तो बाद जिहड़ा है बजट हुण ऑलमोस्ट जिहड़ा है ओबवियसली तैयार हो गया होएगा, तां ही कल पेश करनगे है ना। सो कल बजट पेश हो जाएगा। अगली वारी जिहड़ा अपना लैक्चर होएगा ना संडे वाला, उदों अपना जिवें आपां एतकी किया रिपब्लिक डे स्पैशल, उदों आपां करांगे बजट स्पैशल। ठीक है, उहदे च बजट दे जिहड़े मेन पॉइंट्स होणगे वो सारे आपां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल सारे डिस्कस करांगे। नैक्सट है जी, नैक्सट आप गल करते हैं जी कि इंडिया दी जिहड़ी रिजर्व पुलिस फोर्स है, ठीक है, या पैरामिलिटरी भी कह दिंदे आ, वो क्यों न्यूज़ दे विच है, उनके न्यूज़ दे विच होने के कारण की है। सो फर्स्ट है जी हमारा जवान आयुष्मान। नाउ व्हाट इज दिस हमारा जवान आयुष्मान? दिस इज दी आयुष्मान, इनू आपां ये भी कह सकते हैं जिवें फोटो दे विच है आयुष्मान CAPF। नाउ व्हाट इज दी CAPF? सेंट्रल आर्म्ड प्रोटेक्शन फोर्सिस। सेंट्रल आर्म्ड प्रोटेक्शन फोर्सिस नू आयुष्मान जिहड़ी स्कीम है उनदे तो जिहड़ा लाभान्वित किया गया है, जो है कैशलैस हैल्थ केयर सर्विस टू दी सर्विंग CAPF एंड देयर डिपेंडेंट्स। किन्ने लॉन्च किया जी? इनू लॉन्च किया श्री अमित शाह जी ने गुवाहाटी असम तो। ठीक है जी। सो पहली न्यूज़ रही कि हमारा जवान आयुष्मान CAPF नू, CAPF दे जिहड़े जवान है सारिਆਂ ਨੂੰ ते नाल जिहड़े उन्हां दे डिपेंडेंट्स है उन्हां सब ਨੂੰ आयुष्मान स्कीम दे अंडर लिआंदा गया है। ठीक है। फिर अगली न्यूज़ रही ऑपरेशन सर्द हवा। वट इज दिस ऑपरेशन सर्द हवा? ये चलाया जी BSF ने। हुण BSF इज वन ऑफ दी CAPF, सेंट्रल आर्म्ड प्रोटेक्शन फोर्सिस दी एक आर्म है BSF। कितनियां आर्म्स होंदियां? 7 होंदियां। करवावांगे, कोई गल नहीं। ठीक है। ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान, तुहानू पता है इन्हां दिनां दे विच राजस्थान के बॉर्डर जिहड़े रेतीले बॉर्डर है इन्हां ते बहुत ज़्यादा जिहड़ी है ठंड हो जाती है। सो ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया टू इनक्रीज दी सिक्योरिटी। जवानां नू जिहड़े है वो एडवांस्ड उपकरण दिते गए, एडवांस्ड वैपन दिते गए है, ताकि कोई भी इस सर्दी का कोई भी जिहड़ा है वो एनीमी उनका नजायज फायदा ना चक सके। सो इस तरह ऑपरेशन गर्म हवा भी चलता है जिहड़ा कि जून जुलाई दे विच हुंदा है वैसटर्न राजस्थान दे विच, लेकिन इन्हां दिनां दे विच चलाया गया ऑपरेशन सर्द हवा किंदे द्वारा? BSF के द्वारा। हुण एक न्यूज़ होर आई नैशनल आइस हॉकी चैंपीयनशिप। नाउ हुण आपां कहांगे सर ये तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, स्पोर्ट्स की है, लेकिन पढ़ो ये की है, जिहड़े प्लेयर दिखाए गए है ये दिखाए गए ITBP। सो 10वां एडिशन होया जी नैशनल आइस हॉकी चैंपीयनशिप का, जिंदा वेन्यू रहा गुलमर्ग, दी वैरी रिनोन्ड जिहड़ा आपां कह दईए टूरिस्ट स्पॉट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गुलमर्ग दे विच नैशनल आइस हॉकी चैंपीयनशिप हुई जिन्हों जित्तिया ITBP ने। हुण ITBP दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी CAPF ऑफ इंडिया, सेंट्रल आर्म्ड प्रोटेक्शन फोर्सिस दी एक आर्म है ITBP, जिन्हें इस इवेंट नूं जित्तिया लद्दाख नूं हरा के। हुण तुसीं कहोगे सर वारी वारी गल कर रहे हो CAPF दी, तुसीं CAPF दे विच जिहड़ा है वो सानू ये भी दसता कि CAPF दे विच BSF आ गई, ठीक है, ITBP आ गई। सो हुण असीं कित्थों करांगे, की चीज़ां है? सो अगर CAPF न्यूज़ दे विच है तो क्वेश्चन बनना लाजमी है इन्हां दियां किहड़ियां आर्म्स है, वो कदों कदों बनियां ते करंट हैड जिहड़े है कौन हैगे है। सो आ है जी तुहाडे सामने सेंट्रल आर्म्ड प्रोटेक्शन फोर्सिस CAPF। CAPF दियां 7 जिहड़ियां ब्रांचिस हैगियां। पहली ब्रांच है सब तो पुरानी असम राइफल्स, जिहड़ी कि 1835 दे विच बनी असम राइफल्स। ठीक है, ये नाल नाल इन्हां दी फोटो देखते रहना। सो 1835 च बनी, अंग्रेजां दे टाइम ते इहनूं काचर लेवी कहा जांदा सी, काचर लेवी। सो इहदे जिहड़े हैड हैगे है वो है श्री सुखदीप सांगवान जी, डायरैक्टर जनरल। ठीक है जी। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF कदों बनी? जदों पाकिस्तान नाल वॉर हुई 1965 दे विच। सो इहदे जिहड़े है श्री राकेश अस्थाना जी, इहदे करंट डायरैक्टर जनरल हैगे है, यह है BSF। then CISF सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स। इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स होंदी है जिहड़ी अगर आपां एयरपोर्ट की गल कर लीए या डिफरेंट मोनूमेंट्स की गल कर लीए, जो उन्हां दी सिक्योरिटी इंचार्ज होंदे है वो बने 1969 तो, ते इहदे हैड हैगे श्री SK जायसवाल जी। ठीक है, ये हैगी है CISF। then सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF बनी 1939 तो, इहदे हैड हैगे है डायरैक्टर जनरल हैगे है श्री AP महेश्वरी। ये है जी CRPF, ये यूनीफॉर्म होंदी है। then ITBP इंडो तिबेतियन बॉर्डर पुलिस। सो इंडो तिबेतियन बॉर्डर पुलिस कदों बनाई? जदों 1962 नूं चाइना ने आक्रमण किया सी, ते इहदे हैड हैगे है श्री SS देसवाल। फिर है जी नैशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, ये बनी 1986 चो, जिन्हों ब्लैक कैट्स या कमांडो भी जिहड़े है वो कहते हैं। इहदा जिहड़ा एडिशनल चार्ज है वो भी श्री SS देसवाल जी कोलों ही हैगा है।
दैन सशस्त्र सीमा बल, सो सशस्त्र सीमा बल बनी जी 1963 ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ। ਇਹ ਹੈ ITBP, ਇਹ ਹੈ NSG ब्लैक कैट्स एंड ये है सशस्त्र सीमा बल। सो ये है दोस्तों इनकी स्टैटिक जीके CAPF बारे, क्योंकि CAPF इस हफ्ते काफ़ी जिहड़ियां न्यूज़ सीगियां CAPF बारे रहियां। सो CAPF की स्टैटिक जीके करनी अपना फर्ज है, ठीक है जी। चलो फिर गल करते हैं जी न्यू गेम्स फाइनली एडिड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। वैसे ये दिसंबर लास्ट वीक दे विच भी ये खबर आई सीगी, लेकिन हुण इहनूं जिहड़ी फाइनल अप्रूवल है वो दी गई है, ठीक है जी। सो उहदे विच की है 4 इंडीजीनियस मार्शल आर्ट्स, सो गेम्स नहीं कह सकते लेकिन वैसे ये मार्शल आर्ट्स है जिन्होंने हुण खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम अगर आप 2021 की गल करिए तो ये कित्थे होणगियां, ये होणगियां पंचकुला हरियाणा दे विच, पंचकुला हरियाणा, ठीक है जी। तो अगर आप गल करिए 2022 की तो ये कितने होणगियां जी, भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश। तो लास्ट टाइम कितने हुई सी, लास्ट टाइम हुई सी गुवाहाटी, गुवाहाटी असम दे विच। ते गुवाहाटी असम दे विच जो टॉप स्टेट किहड़ी रही सी, विनर महाराष्ट्र। सो किनू किनू ऐड किहड़ी मार्शल आर्ट नूं ऐड किया गया है, पंजाब तो गतका, मणिपुर की मार्शल आर्ट थंग टा, सेंट्रल इंडिया की मार्शल आर्ट मल्लाखंब, ते केरल की जिहड़ी आर्ट है मार्शल आर्ट कलारी पयट, इहनूं कलारी पयट्टू भी कह देंगे हैं, लेकिन कलारी पयट जिहड़ा इहदा सही नाम है। हुण अगर आप इन्होंने थ्रू पिक देखिए सो इहदे बारे आपां नूं पता ही है, यह है गतका, पंजाब की बहुत ही सैक्रेड जो आप कह दीए कि मार्शल आर्ट है गतका। फिर जिहड़ी है ये है अगर आप गल करिए कलारी पयट, कलारी पयट केरला की मार्शल आर्ट। सो ये है जी मल्लाखंब, मल्लाखंब की होंदा है, मल मतलब ठीक है, मल मतलब रैसलर, ठीक है, रैसलर खिलाड़ी, ते खंब मतलब कि आप जिवें एक पिलर होंदा है। सो ऐस ते जदों आपदा बंदा बॉडी बैलेंस वगैरह दिखांदा है उन्होंने कहते हैं मल्ला खंब। सो ये सेंट्रल इंडिया की गेम है, ते ये हैगी है जी थंग टा मणिपुर की गेम, ठीक है दोस्तों। सो ये सीगे अपने अज दे जिहड़े है वो ब्रेकिंग न्यूज़ या आप कह दीए कि मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ ऑफ द वीक, ठीक है जी। सो हुण दोस्तों आप चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस ऑफ द वीक। सो हुण अगर आप क्वेश्चनस की गल करिए किहड़े-किहड़े क्वेश्चन इन्हां न्यूज़ तो इलावा, ठीक है, एक अद्धा क्वेश्चन विचों हो सकता है, लेकिन इन्हां न्यूज़ तो इलावा मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चनस वाल आपां चलांगे। सो तुसीं बाद आपदे कोलों हुण कॉपी पेन रखो, क्वेश्चन नंबर ते उहदा ऑप्शन नाल लिखना है मेरे आंसर देने तो पहला। अगर तुहानूं लगे कि सर थोड़ा जिहा जल्दी करा रहे हैं तो तुसीं जिहड़ा है उहनूं पॉज करके जिहड़ा क्वेश्चन नूं ध्यान नाल पढ़ लेना है, ठीक है। मैं एक सफिशिएंट जिहा टाइम दूंगा, ज़्यादा तो ज़्यादा 5 सेकंड या 10 सेकंड एक क्वेश्चन ते जिहड़ा है वो मैं तुहानूं प्रोवाइड करूंगा। पहला क्वेश्चन जी थोड़ी स्क्रीन ते एरिया, मिस कैमला हैरिस हैज बीन इलेक्टेड एज फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ US recently. She is appointed as dash vice president of US. सो कैमला हैरिस क्वेश्चन तुसीं पढ़ ही लिया है, कैमला हैरिस जिहड़ी है वो किनवें नंबर की वाइस प्रेसिडेंट US की बनी है। सो A 45th, B 46th, C 48th या D 49th, 45th 46th 48th 49th की आंसर आएगा जी इहदा मिस कैमला हैरिस। लास्ट टाइम आप फेमस पर्सनैलिटी दे विच कीता सीगा जो बाइडन जी एंड कैमला हैरिस जी, इन्हां बारे आप सारी गल कीती सी कि शी हैज बिकम दी फर्स्ट वीमेन वाइस प्रेसिडेंट in US history. Okay, so she is first African American also, she is first person from South Asia also to be elected for such a reputed post. So the right answer to this question is 49th. 49th ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਹੈ ਮਿਸ ਕੈਮਲਾ ਹੈਰਿਸ। अगर आप 45th की गल करिए तो 45th प्रेजिडेंट सीगे, 45th प्रेजिडेंट कौन सीगे जी, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जी 45th जिहड़े है वो प्रेजिडेंट सीगे। 46th अगर आप प्रेजिडेंट की गल करिए प्रेजिडेंट तो वो बने है जी मिस्टर जो बाइडन, डेमोक्रेटिक पार्टी। 48th वाइस प्रेजिडेंट, 48 वाइस प्रेजिडेंट कौन सी जिन्हां दी इन्होंने जगह लीती है, माइक पेंस। So this is which of the following bank is not included in the list of DSIBs recently released by RBI? तो इन्हां चों किहड़ा बैंक है जो DSIB, सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए DSIB की हुंदा है, ये है डोमेस्टिक सिस्टेमैटिकली इंपोर्टेंट बैंक। सो ये लिस्ट रिलीज की है RBI ने, इन्हां चों किहड़ा बैंक उन्हां च इंक्लूडिड नहीं हैगा, A SBI, B ICICI, C PNB या D HDFC।
कौन इंक्लूडिड जिहड़ा है वो DSIB च नहीं हैगा। सो इनका सही जवाब है दोस्तों 5 4 3 2 एंड 1 थोड़े जवाब आ रही है, लेकिन फटाफट मैनू दसो की जवाब है फटाफट। सी PNB इनका जिहड़ा है वो सही जवाब है। हुण तुहानूं पता होना चाहिए कि ये की चीज़ होंदी है DSIB। सो ये होंदी है जी एक लाइन दे विच RBI इन्हां नूं लिखदा है टू बिग टू फेल, कि अगर ये फेल हो गए, ये इन्नियां वड्डियां ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर ये फेल हो गए तो इंडिया की इकोनॉमी जिहड़ी है वो जिवें आपां कहंदे ना कि धड़ाम करके गिर जूगी, है ना, टू बिग टू फेल। सो जिहड़ा है ये चीज़ 2015 च RBI ने शुरू की सी। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला इन्होंने दो बैंकों ਨੂੰ अनाउंस किया, पहला है SBI ਤੇ दूसरा है ICICI। भी ये दोनों जिहड़े है ये डोमैसटिक सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट बैंक हैगे है। फिर 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ HDFC, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ 2021 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, PNB ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। In which of the following state or union territory Rattle Hydro Power Project is located? सो इन्हां चों किहड़ी स्टेट या यूनियन टैरेटरी है जिंदे च रैटल हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट लोकेट हुंदा है? ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी जम्मू एंड कश्मीर या डी लद्दाख? झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख, किहड़ी स्टेट या यूनियन टैरेटरी दे विच रैटल हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट है जिन्हों रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला इहदा काम रुकिया होया सीगा, लेकिन रिसेंटली हुण इहदा सारा बजट जिहड़ा है वो अप्रूव कीता है। सो इस प्रोजैक्ट के उपर जुलाई 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ है वो पाकिस्तान ने भी कहा सी भी सानू इस ते इतराज है। उन्होंने ये गल कही सी कि ये जिहड़ा है ये इंडस जिहड़ा वाटर ट्रीटी है जो 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ होई सी, ये उनकी उलंघना हैगी है, लेकिन इंडिया ने उसका कोई जवाब या कोई जिहड़ा है उस ते जिवें आपां कहंदे ना कान ते जूं नहीं रहेंगी, है ना। सो आपां कुछ नहीं है उस चीज़ ते, क्योंकि आपां आपदी जगह ते इंडिया बिल्कुल ठीक है कि वो कर सकदा है। सो ये प्रोजैक्ट है जी, तुसीं समझ ही गए होंगे, सी जम्मू एंड कश्मीर का। सो रैटल हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the name of the dragon fruit has recently been changed to कमलम by which state of India? तो एक फ्रूट होता है ड्रैगन फ्रूट, उनका नाम इंडिया की एक स्टेट ने चेंज करके कमलम करता। सो वो केड़ा जिहड़ा है स्टेट है? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी हरियाणा या डी केरल? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या केरल, केड़ा स्टेट है जिन्हें जिहड़ा आ चीज़ कीती है? ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके कमलम के नाम से जिहड़ा है वो रखिया है। सो वैसे तो तुहानूं पता ही होएगा कि जिहड़ा है स्टेट जिहड़ा नाम चेंज करने के मामले दे विच तां किहड़ी स्टेट टॉप ते रहिंदी है? उत्तर प्रदेश, लेकिन इहदा आंसर गुजरात है। गुजरात के CM श्री विजय रूपानी जी ने जिहड़ा ड्रैगन फ्रूट हुंदा है, ये तुसीं फल देखिया होएगा। सो ड्रैगन फ्रूट जिहड़ा है देखिया या खाया होएगा। ड्रैगन फ्रूट का नाम क्योंकि गुजरात के ना कच्छ के जिहड़े फार्मर्स हैगे है, कच्छ एरिया दे विच काफ़ी जिहड़ा फ्रूट है ये उगाया जाता है। सो जुलाई 2020 दे विच जिहड़ी आप मन की बात होती है उहदे च भी PM मोदी जी ने उन्होंने संबोधित किया सीगा कच्छ के जिहड़े ड्रैगन फ्रूट के जिहड़े फार्मर्स हैगे है। सो गुजरात के CM ने कहा कि एक फल का नाम ड्रैगन जिहड़ा है वो वधिया नहीं लगता। सो उन्होंने कहा कि ये कमल की तरह दिखता है। सो कमलम जिहड़ा है वो इनका नाम गुजरात ने रखिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट गल करते हैं जी। हुनर हाट द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हुनर हाट जिहड़ा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, जिन्हां दे मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी जी, ठीक है, जिन्हां दा एक नॉवल भी आया सी बलवा, है ना। सो वो जिहड़ा हुनर हाट है ये किहड़ी स्टेट दे विच शुरू किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार नहीं, बी पंजाब, सी तेलंगाना या डी कर्नाटका? उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना या कर्नाटका? तो किथे लॉन्च किया गया जी हुनर हाट? हुनर हाट जिहड़ा है वो लॉन्च किया गया 5 4 3 2 एंड 1। द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ दे विच हुनर हाट जिहड़ा है वो लगाया जा रहा है। हुण इस क्वेश्चन ते ना मैं फटाफट तुहानूं तो ना 3 क्वेश्चन पूछदा, फटाफट 3 क्वेश्चन, ठीक है। चैट दे विच फटाफट जवाब आने चाहिए इन्हां दे, ठीक है, नहीं तो मैं दूंगा 3 क्वेश्चन आएंगे। मैं इत्थे लिखी 3 स्टार बना देना, 1 2 3। देखते हैं किन्नों किहड़े परसन नूं तीनों क्वेश्चन जिहड़े है सही आते होणगे। पहला क्वेश्चन है मेरा, इन्हां स्टेटां चों अगर ऑप्शन आ 4 ही होण, अवलोकन सॉफ्टवेयर, अवलोकन
अवलोकन सॉफ्टवेयर किहड़ी स्टेट ने लॉन्च किया है जिहड़ा इन्हां दा अकाउंट्स का लेखा जोखा रखेगा, अवलोकन सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर दूसरा मैं गल करूंगा हीमा कोहली, मिस हीमा कोहली जिहड़ी है इन्हां चों किहड़ी स्टेट दी पहली वीमेन चीफ जस्टिस बनी है, हीमा कोहली। तीसरा मेरा है इन्हां चों किहड़ी स्टेट है जिंदी एक स्कीम है घर घर रोजगार, पूरा सुन लेना पहला, ठीक है, घर घर रोजगार एंड कारोबार, घर घर रोजगार ते कारोबार, ठीक है, ये स्कीम। सो हुण तीसरे का आंसर तुहानूं बड़ा ईजीली पता होएगा, पंजाब, है ना, घर घर रोजगार ते कारोबार। ते अवलोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जी करनाटका ने, मैं शोर्ट लिख देना करनाटका। ते हीमा कोहली पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनी है तेलंगाना हाई कोर्ट की। ओके है जी, सो अवलोकना सॉफ्टवेयर कर्नाटका, हीमा कोहली तेलंगाना, घर घर रोजगार ते कारोबार पंजाब। India has concluded the 5th edition of Defence Ministers Dialogue with which of the following country? ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਇਲੋਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ? A ਨੇਪਾਲ, B ਸਿੰਗਾਪੁਰ, C ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ D ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ 5th ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਡਾਇਲੋਗ। नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया या श्रीलंका। हरी अप गाइस, फटाफट दसो इहदा की जवाब आएगा, किहदे नाल इंडिया ने 5वां आपदा जो है वो डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग कीता है? सही जवाब है दोस्तों बी सिंगापुर। सिंगापुर नाल जिहड़ा है ये चीज़ इंडिया ने पूरी की है। ठीक है जी, सिंगापुर काफ़ी चीज़ों के करके न्यूज़ दे विच है। सिंगापुर पहली न्यूज़ दे विच है क्योंकि सिंगापुर दे विच वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जिहड़ी है वो जिहड़ी एनुअल समिट होंदी है, एनुअल समिट वैसे तो वो हर साल कित्थे होंदी है डेवोस स्विट्जरलैंड दे विच, लेकिन सैकेंड टाइम हुण तक दी हिस्टरी दे विच सिर्फ दूजी वारी जिहड़ी ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की समिट है ये सिंगापुर दे विच होण जा रही है। पहली बारी यूएसए दे विच होई सीगी 9/11 के हमले तो बाद। ठीक है जी, फिर अगर आप सिंगापुर की गल करिए तो सिंगापुर का होकर स्ट्रीट फूड जिहड़ा होकर स्ट्रीट फूड वाला जिहड़ा इन्हां दा ट्रेडिशन है उन्होंने यूनैस्को ने आपदी हैरीटेज दे विच जिहड़ा इनटैंजीबल हैरीटेज है उस लिस्ट दे विच रखिया है, होकर स्ट्रीट कल्चर फूड ऑफ सिंगापुर। ठीक है जी, फिर सिंगापुर वो कंट्री है जिंदे विच सब तो पहला लीस्ट कोविड केसिस हैगी है, ऐस करके भी सिंगापुर न्यूज़ दे विच है। दूसरा सिंगापुर तां भी न्यूज़ दे विच है जिथे यूएस के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, मैं शॉर्ट लिख रहा डोनाल्ड ट्रंप ते नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर जिहड़े हैगे है किम जोंग उन, इन्हां दी जिहड़ी मीटिंग है वो भी सिंगापुर दे विच हैपन होई सीगी। फिर अगर आप सिंगापुर की गल करिए तो सिंगापुर जिहड़ा है वो हैनले जिहड़ा पासपोर्ट इंडैक्स है हैनले उहदे विच सैकेंड रैंक ते आया, जिहदे फर्स्ट दे विच की सीगा जापान। नेक्स्ट, पद्मा अवॉर्डी वी शांता who passed away recently was related to which of the following profession? सो पद्मा अवॉर्डी डॉक्टर वी शांता जिन्हां दा रिसेंटली देहांत होया वो इन्हां चों किहड़े फील्ड नाल रिलेट करदे सी? ए मैडिकल, बी पॉलिटिशियन, सी एक्टिंग या डी जर्नलिज्म। सो मेडिकल, पॉलिटिशियन, एक्टिंग या जर्नलिज्म, ए बी सी डी, चारों चों की जवाब आऊगा जी? फटाफट हरी अप, 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1 एंड द राइट आंसर इज मेडिकल प्रोफेशन। वी शांता जिहड़े है जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट सीगे। ठीक है जी, ये कैंसर की जिहड़ी ट्रीटमेंट है उहदे नाल रिलेट करदे सी एंड शी वाज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द कैंसर इंस्टीट्यूट चेन्नई तमिलनाडु। सो वी शांता जी का नाम तुसीं याद रखना है। Which of the following global report is not published or released by World Economic Forum? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है। सो की है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन्हां चों किहड़ी जिहड़ा इंडैक्स या किहड़ी रिपोर्ट है उन्होंने पब्लिश नहीं करता, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ दी डेवोस समिट। सो डेवोस समिट जिहड़ी है वो वर्चुअल दे विच ऐसे हफ्ते हुई एजेंडा समिट हुई कि जिहड़ा मई 2021 दे विच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सिंगापुर दे विच जिहड़ा अधिवेशन रखना है, जिहड़ी समिट रखनी है, उनका की एजेंडा होना चाहिए दी ग्रेट रीसैट तो इलावा। दी ग्रेट रीसैट का एजेंडा चल ही रहा है कि कोविड तो बाद किवें इकोनॉमी नूं आपां मेन जिहड़ा स्ट्रीमलाइन करना है। सो
क्वेश्चन बनया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिहड़ा कि 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਲੋਨੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਕਲੋਸ ਸ਼ਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स सो इनका सही जवाब आएगा जी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स रिपोर्ट क्यों सही जवाब है इनका क्योंकि आ जी रिपोर्ट है इनू पेश करता है EIU ठीक है जी इकोनॉमिक इंटैलीजेंस यूनिट ये ओनू करता है जिहड़ा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनू पब्लिश नहीं करता बाकी तीनों नू करता है एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट इज ए जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इस बारे मैं तुहानू दस ही चुकिया शुरू तो ही जो आप रफाल की गल की सी सो वो एक्सरसाइज है जिहड़ी एक्सरसाइज दे विच रफाल ने पहली बारी पार्टिसिपेट किया सो ये एक्सरसाइज है जी इंडिया ते फ्रांस की ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਇਹ ਹੋਈ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨਾਈਟ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਰੁਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੁੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਰੁੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਫਰਾਂਸ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਗਰੁੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ इंडिया फ्रांस नाल गरुड़ा एक्सरसाइज भी करता है शक्ति एक्सरसाइज भी करता है लेकिन वो अलग अलग है शक्ति एक्सरसाइज है आर्मी नाल गरुड़ा एक्सरसाइज है एयरफोर्स नाल लेकिन गरुड़ा शक्ति जिहड़ी इकट्ठी अगर आप गरुड़ा शक्ति कहिए वो एक्सरसाइज है इंडिया ते किंदी इंडिया ते इंडोनेशिया दी हुण जिवें अगर शक्ति एक्सरसाइज इंडिया इहदे नाल करदा है फ्रांस दे नाल अगर तुहानूं कोई पूछे मित्रा शक्ति इंडिया किहदे नाल करदा है मित्रा शक्ति इंडिया नाल करदा है श्रीलंका नाल सो ये तुसीं चीज़ां याद रखनियां फिर है जी निहाल सरीन इज एन इंडियन प्लेयर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट निहाल सरीन जिहड़ा है वो इन्हां चों किहड़े स्पोर्ट नाल रिलेट करदी है ए चेस बी बैडमिंटन सी स्क्वैश या डी बिलियर्ड्स सो किहदे नाल रिलेट करदे है जी मिस्टर निहाल सरीन सो निहाल सरीन जिहड़े रिलेट करदे है जी फटाफट 5 4 3 2 1 राइट आंसर इज चेस बिकॉज फीडे का एक ब्रिलियंसी अवॉर्ड ग्लैसप्रोम ब्रिलियंसी अवॉर्ड फीडे की तरफों जिहड़ा है निहाल सरीन जी नूं मिलिया सो निहाल सरीन अंडर 18 दे चैंपीयन हैगे है चैस दे सो निहाल सरीन रिलेट करते हैं चैस दे नाल नेक्स्ट मोढेरा सन टेंपल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया मोढेरा सन टेंपल उड़ीसा गुजरात हरियाणा वेस्ट बंगाल उड़ीसा गुजरात हरियाणा या वैस्ट बंगाल ABCD सो अगर तुसीं टैबल्यूज़ नूं ध्यान नाल देखिया होवे मेरी इंफॉर्मेशन अज दे ही लैक्चर दी अगर ध्यान नाल सुनी होवे तां बड़ा चुटकियां दा क्वेश्चन है तुहाडे वास्ते मोढेरा सन टेंपल इज लोकेटेड इन गुजरात वाई इट इज सो बिकॉज इन द टैबल्यू ऑफ द गुजरात दी इट वाज शोइंग दी मोढेरा सन टेंपल नूं तुसीं जिहड़ा है वो कोणार्क सन टेंपल नाल कंफ्यूज नहीं करना कोणार्क सन टेंपल उड़ीसा दे विच है ते मोढेरा सन टेंपल जिहड़ा है वो कोणार्क सन टेंपल तो भी पुराना है मोढेरा सन टेंपल इन गुजरात दी जिहड़ी टैबल्यू सीगी इट वाज एसोसिएटेड विद मोढेरा सन टेंपल एज वेल एज टपानी डांस दे नाल सीगी ठीक है जी सो ये तुसीं याद रखना है नेक्स्ट विच मिसाइल हैज बीन अलाउड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी एक्सपोर्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हां चों किहड़ी मिसाइल दी एक्सपोर्टिंग नूं जिहड़ी है वो परमिशन दित्ती है ए आकाश बी ब्रह्मोस सी पृथ्वी या डी अग्नि आकाश ब्रह्मोस पृथ्वी या अग्नि किहड़ी मिसाइल जिहड़ी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी एक्सपोर्टिंग जिहड़ी है वो अलाउ की है हरी अप 5 4 3 2 1 एंड द राइट आंसर इज आकाश Why it is in news? Because Akash NG Akash new generation missile ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ITR integrated test range ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਿਸਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਈਲ ਦੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਂਜ ਹੈ ਨਵੀਂ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਈਲ ਦੀ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ Who of the following is the richest person in the world as per latest list released by Hurun recently? सो हुरून द्वारा की गई रिलीज की गई लेटेस्ट लिस्ट दे विच वर्ल्ड का सब तो अमीर बंदा कौन है ए जेफ बेजोस बी एलोन मस्क सी बिल गेट्स या डी जैकमा एमेजोन वाले जेफ बेजोस स्पेस एक्स वाले या टेस्ला वाले एलोन मस्क माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स या अलीबाबा चाइना वाली कंपनी जैकमा कौन है जी सो इनका सही जवाब है दोस्तों एलोन मस्क
So Elon Musk was in news recently because SpaceX जो US ਦੀ प्राइवेट स्पेस फर्म है ਉਹ SpaceX ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 143 ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਇਸਰੋ ਦਾ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 104 ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, Srishti Goswami, who was appointed as one day CM, belongs to which state of India? So ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 24 ਦੇ ਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, in which of the following state or union territory a month-long strawberry festival has been inaugurated? ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੰਬਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? A त्रिपुरा, B गुजरात, C राजस्थान या D उत्तर प्रदेश? ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਬਾ? त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? ABCD फटाफट जी। हाँ जी, देख रहे हैं की जवाब आ रहे हैं ABCD। ओके ठीक है, चलो फिर देखते हैं सही जवाब है जी डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सही जवाब है। आप फोटो भी देख सकते हो। झांसी ऑर्गेनिक एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन झांसी ने एक महीना लंबा 17 जनवरी तो 16 फरवरी तक का फैसटीवल ये ऑर्गेनाइज किया, स्ट्रॉबेरी फैसटीवल, स्टे एट होम फूड फैसटीवल। तो इन चीफ गेस्ट रहे श्री योगी आदित्यनाथ जी। हुण अगर मैं बाकी स्टेट्स की गल करा, त्रिपुरा वाज इन न्यूज़ ड्यू टू कोकबरोक। ठीक है, कोकबरोक की चीज़ होंगी है? कोकबरोक डे। त्रिपुरा ਦੇ ਵਿੱਚ 19 जनवरी ਨੂੰ कोकबरोक डे मनाया गया जो कि ਇਹਦੀ ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी है। सो क्वेश्चन पूछा जाए कि कोकबरोक डे या कोकबरोक ਜਿਹੜਾ है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? दैट इज त्रिपुरा। गुजरात न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ क्योंकि गुजरात ने अडानी पोर्ट्स ਨਾਲ मिल के अडानी पोर्ट्स ਨਾਲ मिल के गुजरात की बना रहा है वर्ल्ड ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ मल्टी मॉडल पार्क। ठीक है जी, गुजरात ਤਾਂ न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ है। राजस्थान न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ है। राजस्थान एक ਤਾਂ क्रॉप सर्वे करवा रहा है कि ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਰੋਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰੋਪ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ 33% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ। Next, who of the following states police academy has been adjudged as the best as per recently announced by Ministry of Home Affairs? So ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੁਆਰਾ? A त्रिपुरा, B ਰਾਜਸਥਾਨ, C ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ D ਬਿਹਾਰ? ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ स्टेट है जिंदी पुलिस अकेडमी बेस्ट जज की गई है? फटाफट जी, 5 4 3 2 1। राइट आंसर इज राजस्थान की गजटेड अफसर्स की जी ट्रेनिंग अकेडमी है वो भी, नाल ही राजस्थान के विच एक कॉन्स्टेबल्स ट्रेनिंग अकेडमी है जी किशनगढ़ के विच हैगी है, वो भी कंट्री के विच बेस्ट चुनी गई है। ठीक है जी, सो राजस्थान बारे तुसीं ये न्यूज़ याद रखनी है। नैक्सट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप्ड इन द रिसेंटली अनाउंसड क्लाइमेट चेंज परसैप्शन इंडेक्स? सो ध्यान नाल पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज परसैप्शन। सो क्लाइमेट चेंज परसैप्शन इंडेक्स दे विच किहड़ी कंट्री ने टॉप किया? A USA, B स्वीडन, C इंडिया या D सिंगापुर? USA, स्वीडन, इंडिया या सिंगापुर? सो इनका सही जवाब है दोस्तों, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्वीडन ने इस मामले दे विच टॉप किया। इंडिया दे विच अगर आपां गल करिए तो इंडिया का रैंक सीगा 10th, 10वां रैंक। ठीक है, 10वां रैंक सीगा ते यूएसए का रैंक सीगा लास्ट। जिन्ने भी स्टेटां नूं जिन्नियां भी कंट्रीज़ नूं जिहड़ा है ने पार्टिसिपेट किया सी, यूएसए का लास्ट रैंक सीगा। फेडरल रिजर्व इज द अपेक्स बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? फेडरल रिजर्व इन्हां चों किहड़ी कंट्री दी जिहड़ी है वो टॉप बैंकिंग अथॉरिटी हैगी है? A USA, B जर्मनी, C जापान या D वियतनाम? किंदी हैगी है जी अपेक्स बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ विच कंट्री, जिनका नाम है फेडरल रिजर्व। जिमें इंडिया, थोड़ा हिंट दे देना, जिमें इंडिया के RBI है उमें
ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ USA ਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫੋਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਦੇ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਆਫ ਵਰਲਡ ਕਸਟਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 26 ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਸਟਮ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਸਟਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਮਸਟ ਬੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਰੁਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? जिनेवा, वियाना, न्यूयॉर्क या ब्रुसल? कंट्री समझनी है। जिनेवा है स्विट्जरलैंड दे विच, वियाना है ऑस्ट्रिया दी कैपिटल, न्यूयॉर्क है USA दे विच, ते ब्रुसल्स है बेल्जियम दी कैपिटल। तो जिनेवा, वियाना, न्यूयॉर्क ते ब्रुसल। की आंसर आएगा जी इनका? द राइट आंसर इज ब्रुसल, बेल्जियम दे विच वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन दे हैडकुआटर है। अगर आप बाकी ऑप्शंस की गल करिए दोस्तों, जिनेवा दे विच तां मैक्सीमम ਜਿਹੜੀਆਂ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हैडकुआटर जिनेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक्सेट्रा होर भी काफ़ी है, ठीक है। फिर अगर आप वियाना की गल करिए, वियाना दे विच ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਇਹਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਔਨ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮਸ, ਇਹਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਵਿयना ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼, OPEC, ਇਹਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਵਿयना ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯੂਨੀਸੈਫ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟੋਟਲ ਟੈਬਲਿਊਜ਼ ਵਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ 2021? ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਬਲਿਊ ਸੀਗੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ? A17, B19, C6 ਤੇ D32। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਕਿ 17 + 9 + 6 = 32। 17 ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ, ਸਟੇਟ/ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ, 9 ਸੀਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 6 ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ। टोटल मिला के किन्ने हो गए? 32। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਆਪ ਦਾ ਥੋੜਾ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2-4 ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਾਈਕ PIB ਤੋਂ। ਆਪਦੇ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਜਸਟ ਇੰਸਟਾਲ ਦੀ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਨੀ ਆਫ ਦੀ ਕੋਰਸ। ਈਵਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਤੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦੋਸਤੋ,
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕਰਕੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल ऐप पे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। रब रखा।